Hello friends, Namaskar. This is Dhamyan once again with my new video on my YouTube channel CAD73. In this video once again we are going to discuss about Revit architecture. For your knowledge, I would like to uh, once again describe it as Revit architecture is a powerful building information model. This is BIM software. Actually, it has everything regarding 3D model, annotation, and even the quantity itself. So, it is developed by Autodesk. It is widely used by architects, engineers, and construction professionals for designing purpose, document visualizing, and manage building projects uh, efficiently. Okay, so here we whatever Revit architecture provide us, we are going to know each and every details about that. So first we are starting Revit architecture by clicking on Revit architecture icon. I am using Revit 2018. For Hindi audience, I would like to once again translate into Hindi. अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रेविट आर्किटेक्चर है ये एक तरह का बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल यानी बीम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट से लेकर के 3D मॉडलिंग तक, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के 3D मॉडलिंग तक सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ रेविट का यूज़ करते हैं। पहले तो होता है कि ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल है, बीम है, इसमें 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और MEP वगैरह या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए बेहतर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग के लिए भी बेहतर है ये, और इसमें हमारी रिक्वायरमेंट लगभग डिज़ाइनिंग रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स क्रिएट इंटेलिजेंट 3D मॉडल्स, बहुत ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक डाटा को लेकर के बनाता है, और हेल्प टू कोऑर्डिनेट अक्रॉस एवरीथिंग, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और MEP तीनों चीज़ें एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम लोग न्यू ले रहे हैं, क्लिक करते हैं, हमारा स्क्रीन सामने दिखा रहा है। यहाँ रिसेंटली जो यूज हुआ है, जो कुछ ड्राइंग यहाँ पे बने हैं वो हैं। अब हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ नीचे ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चर टेम्पलेट, स्ट्रक्चर टेम्पलेट, मैकेनिकल टेम्पलेट। तो न्यू पे क्लिक करते हैं और हम न्यू प्रोजेक्ट में हम सेलेक्ट करते हैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट, जो ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं, और ओके करेंगे। ठीक है, actually Revit is also used in architectural design. Uh, that means uh, it's a very useful tool for those people who are in designing field or architecture. Uh, we can create design or design walls, floors, roofs, doors, windows, etc. Even we can create stairs and other building component itself. Floor plans, elevations is easily done in Revit architecture, and if you provide detail in Revit, it can generate documentation as well, parametric design. We can create realistic rendering as well. We can collaborate with other Autodesk software like CAD 360 uh, and Autodesk Construction Cloud, etc. Now here we are, it's the Revit interface screen, which has application menu as well. Okay, and okay, we can see here. Now quick access toolbar is there. We can easily just open, save, and synchronize, print. Okay, we can easily use quick access toolbar. Next one is ribbon. This is ribbon for
where wall, door, window component, column, roof, ceiling, floor, certain system, curtain grid, etc. are there. Properties plate is right here, properties plate, and then project browser is there. This is called drawing area. Okay, we can visualize, we can scale, we can zoom in, zoom out, and we have navigation toolbar here. We can zoom in and zoom out using navigation. Okay, now what are common tools actually? Actually, we have common tools where we can create wall, we can create window, door. There are other components as roof and ceiling as well here. Stairs are there. Okay, we can tag room. So it's provide each and everything which we need to create an architectural drawing, isn't it? So in previous video we have already discussed about how to create level and how to create wall. In component we are seeing here in tools, wall is there. Just click on wall and choose which wall you are going to, which wall thickness you are going to use. Here generic 150 mm masonry, generic 200 mm, generic 200 mm field. You can pick any of them. Suppose we are using here basic wall generic 200 mm. Okay, यहाँ पे हिंदी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ आर्किटेक्चर में ऑप्शन है वॉल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम वॉल पे क्लिक करेंगे और वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं मेसनरी या जेनरिक 200 mm। अब सवाल आता है ये है कि हम लोग किस यूनिट में काम कर रहे हैं। हम कैड में जानते हैं कि यूनिट हम लोग सेट करते हैं, तो इसमें भी हम लोग अपने यूनिट को इंपीरियल में सेट कर सकते हैं, यानी फीट इंचेज में भी काम कर सकते हैं। अब ये यूनिट है मेट्रिक में है, mm में है, तो हम अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यूएम कमांड इसमें भी चलता है। ठीक है, इवेंट इंटर करने की जरूरत नहीं है, कैड की जैसे इवेंट करते ही आ जाएगा। यहाँ डिसिप्लिन कॉमन रहेगा। यहाँ से सपोज हमने मिलीमीटर की जगह फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस ले लिया है और ओके कर दिए। नेक्स्ट है, जब हमारा लेंथ जो होगा फीट में होगा तो हमारा एरिया भी स्क्वायर फीट में हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ वॉल्यूम जो होगा वो भी हमारा क्यूबिक फीट में हो जाएगा। ठीक है, ओके कर देंगे। अभी एक चीज़ और रह गया है कि हमारा स्क्रीन जो है अभी इंटरफेस स्क्रीन है वो हमें वाइट दिख रहा है। इसको हम लोग चाहते हैं कि ब्लैक हो जाए, जो काफ़ी यूजुअल लगता है। हम लोग को लगता है कि हाँ फेमिलियर है काम करते वक्त। हम लोग फाइल में जाते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं और ऑप्शन में जा करके हम लोग देखते हैं ग्राफिक्स में ये हो गया बैकग्राउंड वाइट है, बैकग्राउंड को वहाँ से हम लोग ब्लैक कर देंगे। ओके कर दिया, ओके। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे कि कैसे इसमें हम बाकी चीज़ें करेंगे। जैसे हमने वॉल लिया था, तो वॉल लेने के बाद हमें ये देखना है कि ये दिखा रहा है फिट में, दिखा रहा है अनकनेक्टेड, दिखा रहा है 26 फिट का। हाँ, इसके पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे, देखेंगे कि लेवल हमारा 1 और 2 ही क्रिएट हुआ है। हम 1 और 2 लेवल पे अगर कुछ कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले एलिवेशन में जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ एलिवेशन पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास लेवल 1 हो गया और लेवल 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो वैल्यू है इसको 11 फिट कर सकते हैं लेवल 1 को। लेवल 1 और लेवल 2 का नाम भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग GF कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, कैपिटल में कर लेंगे, ज़्यादा विजुअल रहेगा। GF, यस,
और इसको क्लिक करते हैं हम लोग फर्स्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग कि कैसे आर्किटेक्चर में जाकर के वॉल क्रिएट होगा। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे फिर फ्लोर प्लान में ये पे चले जाएंगे। क्लियर है। अब इतनी सारी चीज़ें हम लोग को दिख रही है यहाँ पे। हमें यहाँ पे वॉल क्रिएट करना है, तो वॉल पे क्लिक किया और जो बेसिक वॉल हमने यहाँ चूज किया, वाट एवर बेसिक वॉल वी हैव चोजन। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको एडिट करेंगे। क्या करेंगे? एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हमें पहले डुप्लीकेट करना है। क्या करना है? डुप्लीकेट करके हम इसे 9 इंच वॉल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 9 इंच वॉल। ओके। अब 9 इंच वॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एडिट में जाएंगे, यहाँ दिख रहा है। अब इसका वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे 0 फीट 9 इंच कर देते हैं। और अभी हम लोगों को इसमें मटेरियल नहीं इनपुट करना है। मटेरियल इनपुट करना होगा तो हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, ओके हुआ। चलिए यहाँ जूम करके मिनिमम जो हम लोग हाइट देना है, ठीक है, मिनिमम हाइट पे हम लोग क्या करते हैं? हमें चाहिए हाइट कहाँ तक चाहिए? अनकनेक्टेड नहीं, हमें फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से कहाँ तक चाहिए? फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए। तो जो हमने फर्स्ट फ्लोर का हाइट दिया है वहाँ तक ही क्रिएट हो जाएगा वॉल। और वॉल ड्रैग करते वक्त जैसे सपोज हमने यहाँ से ड्रैग किया तो हम यहाँ से वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं। 44 है, हमने 35 टाइप किया। क्या किया? 35 टाइप किया। ठीक है। इधर हम चलते हैं, 30 टाइप किया, हिट इंटर। फिर इधर से चेंज करेंगे, जूम कर लीजिए, साफ दिखाई देगा। ठीक है, पैन करेंगे और जूम करेंगे और ये 35 है एज यूजल। और यहाँ हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कंप्लीटली ये 35 फीट बाई 30 का एक आउटलाइन प्लान दिख रहा है। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट who is well versed in English, I would like to translate for their purpose. Here we launched Revit and choose architectural template, and then we went to elevation and use the level tool. And here we haven't added any layer, any level, which is extra. We are using first floor and ground floor after renaming it. Then we are going to the level one, that is the ground floor, and we have chosen basic wall type, and I have already edited the wall type into 9 inch wall. Isn't it? Now I started from a particular point and drag it towards uh, the dimension of 35 feet, and then change the direction and went to the 30 feet uh, vertically. Now I maintain the same aspect ratio and close the boundary. Here we have already created the outer wall for the plan. Now we can use the same wall type, or we can create another wall type for the partition, isn't it? Now choose architecture, choose wall here. This could be anyone. Generic interior, partition. Choose any wall. We can also choose the generic 90 mm brick as well. And I'm going to edit it, duplicate 5 inches wall. 5 inches wall. Okay. Now edit the thickness of wall, which is 5 inches. 0 feet 5 inches. Isn't it? Now click OK, and we are randomly
using the partition. Okay, this is the normal partition. We can also edit the dimension like this. Okay, it's 12 feet 6. It's 12 feet 6. Okay, it's 10 feet 6 inches. It's 12 feet 6 inches. Make it 12 feet 6 inches as well. 12 feet 6 inches. Okay. Now the plan has been created. Okay. So whatever it is, we are going to see it into 3D. Okay. By clicking here, we can view the default 3D view. Okay. This was the plan which has been created in 2D. Now it's showing in 3D. ठीक है, अब हम हिंदी भाषी लोगों के लिए बात करना चाहेंगे। अभी हमने एक प्लान क्रिएट किया और उसमें एडिट करके वॉल साइज लिया, वॉल थिकनेस लिया, इंटीरियर के लिए अलग लिया और एक्सटीरियर के लिए अलग लिया। अब हम इसको 3D व्यू में जाकर के हमने यहाँ पे क्लिक किया और चेंज किया। यहाँ से भी 3D व्यू को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग एलिवेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें एलिवेशन शो करेगा कि हमने प्लान जो बनाया है कहाँ तक बनाया है, 11 फीट हाइट तक गया है। अब जैसे रिक्वायरमेंट होगी हमारी, उसके बाद हम लोग आगे क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग अलग लेवल क्रिएट करेंगे नेक्स्ट फ्लोर के लिए, और फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिंपली कि कैसा दिख रहा है। अब सपोज आपको एक रेंडमली आपको वॉल और विंडो दिखाने हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीधे फर्स्ट फ्लोर पे चले, ग्राउंड फ्लोर पे चले जाइए एंड यहाँ पे डोर कंपोनेंट पे जाइए और डोर में आप सिंगल कुछ भी चूज करते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट चाहे तो कर सकते हैं इसका, ठीक है। हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट करके हमने ओके किया। मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ अभी इसका, ठीक है। आप जहाँ जहाँ इसको प्लेस करना है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी होगा बाद में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये हो जाएगा, मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो डबल डोर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जो सही नहीं लग रहा है उसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। परफेक्ट, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि डबल डोर के लिए जो ऑप्शन है इस पर भी डायरेक्शन पे हम लोग क्लिक कर दिए। अब ये हो गया, यहाँ डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये जो एरो शो कर रहा है इस एरो पे क्लिक करते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसा ही रेंडम बन रहा है उसे बना लीजिए और बाद में जाकर के इसके डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा विंडो पे। विंडो पे आते हैं तो विंडो में भी रेंडम कोई चूज कर लो, ये साइज कोई भी ले लो, ठीक है। बाद में एडिट भी कर लो, नहीं चाहते हैं कि ओवरलैपिंग हो इसका, डुप्लीकेट कर लो, इसका कुछ भी नाम रख लो, सेकेंड कर दिया, ओके। अब आपने जहाँ जहाँ प्लेस करना है आप प्लेस करते चले गए।
बाद में हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। एडिटिंग करके डिस्टेंस इसका मेंटेन किया जा सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात ये है नहीं। चलिए एकदम कुछ भी बन गया। अब एकदम कुछ भी कैसे बन गया, ये बाकायदा बन गया। अब ये देखना था कि हमने फिक्स लिया था, ठीक है। अब सील लेवल इसका घटा बढ़ा सकते हैं, इसको चेंज किया जा सकता है। इस बस देखने के लिए था कि कैसे विंडो और डोर को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद वेरियस ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसमें आपको शैडो ऑन ऑफ है, आपको विजुअल स्टाइल है, किस तरह से आप देखना चाहते हैं, रियलिस्टिक देखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। इनसाइड वॉल पेज ऑलरेडी इसमें मटेरियल दिया गया था, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। बाकी पे हम लोग कलर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन है वॉल पेंट का है, जो पेंट इस पर दिखाना चाहते हैं हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। नॉट अ बिग डील है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्रिएट कीजिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड watching my channel, and I would request you to subscribe and share with your friend.